wonderful day. Maybe every Sunday should be Resurrection Sunday. मैं ऐसा मानता हूँ कि हर एक रविवार जो है पुनरुत्थान की रविवार होनी चाहिए। Now, today I want to talk about the faith of Jesus that opened to the resurrection. और आज मैं बात करना चाहता हूँ कि यीशु का जो विश्वास है जो पुनरुत्थान के रास्ते को खोला है। Amen. That really touched my heart. This entire, Holy Week from Palm Sunday, all and Good Friday, all the way to today, the faith of Jesus. और खजूर इतवार से लेके गुड फ्राइडे और रिजरेक्शन संडे तक जब मैं ये पूरे सप्ताह के विषय में देखता हूँ तो यीशु के विश्वास को ध्यान कर रहा था। Amen. I believe we'll all be encouraged today. और मैं विश्वास करता हूँ कि हाँ इस वचन से हम प्रोत्साहित होंगे। I want to ask you to imagine that you're standing on the edge of a cliff. और मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें कि आप ऐसे गहरी खाई के पास खड़े हैं। You're going to jump off. और आप कूदने वाले हैं। Not to commit suicide, but it's a bungee jump. और बंजी जंप के लिए आप तैयार हैं कूदने के लिए। Okay, and everything is set. You got your harness, you've got the bungee cord, you got the instructor. He's told you everything, and everything is tested. और बंजी जंप के लिए आप तैयार हैं, सारी रस्सियां बंधी हुई हैं सही तरीके से और इंस्ट्रक्टर ने भी आपको जो है सलाह दी है किस तरह से जंप करना है। The only thing left is you have to jump. और केवल एक ही चीज अब रह गई है वो है आपको कूदना है। Amen. And that's what faith is. और अब विश्वास ऐसा ही है। After getting everything, after receiving a word from God, after getting direction, after getting assurance, finally you have to take that step. और परमेश्वर की ओर से वचन पाने के बाद बहुत सारी निश्चयता होने के बाद अब अंततः ये है कि आपको विश्वास में आगे बढ़ना है। All of us here, we are called to live by faith. और हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं परमेश्वर ने हमें विश्वास से चलने के लिए बुलाया है। But often we become like Thomas, unless I touch, unless I feel, unless I see, I'm not going to believe. और कई बार हम तोमा के समान हो जाते हैं कि जब तक मैं उसके हाथ को स्पर्श कर ना लूं विश्वास नहीं करूंगा। And somebody asked, how can I believe if I haven't seen it? और किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर मैंने देखा नहीं तो कैसे विश्वास कर पाऊंगा। So the man replied, have you seen your brains? और उस व्यक्ति ने कहा कि क्या आपने अपने मस्तिष्क को देखा है। Esther and I, many times God spoke to us many exciting things. और पास्टर एस्टर और मुझसे जो है परमेश्वर ने कई अद्भुत तरीके से मुझसे बातें की। But often all those exciting things came with a fear. और जितने भी उत्साहवर्धन बातें हैं वो सारे भय के साथ आए हैं। And finally we had to take that step और of faith. अंततः हमें जो है वो विश्वास का कदम उठाना पड़ा। And today Resurrection Sunday is a culmination of the faith life of Jesus. और आज जो पुनरुत्थान का जो रविवार है एक ऐसी चरम है यीशु मसीह का विश्वास का। His whole life he entrusted his life, his body, his future, everything into his Father's और hands. यीशु ने अपने पूरे जीवन उन्हें अपने पूरे शरीर के साथ जो है अपने पिता की इच्छा पर निर्भर रहा विश्वास किया। And that faith led to the resurrection. और यही वो विश्वास है यीशु मसीह को पुनरुत्थित होने में मदद की। Today your faith, my faith is going to lead to a resurrection in our और circumstances. आज आपका विश्वास मेरा विश्वास जो है उसी पुनरुत्थान की ओर हमें अग्रसर करेगा। I have an unusual text today for my message, and that is from the book of Psalms, chapter 16. और आज जो विषय है उस विषय को मैंने साम 16 से लिया हूँ। And verses 9 and 10. Psalm 16, verses 9 and और 10. भजन संहिता उसका 16 उसका 9 और 10 पर। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न हुई और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। Amen. Amen. I'll read in English too. It says, therefore my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay. Amen. This is a psalm. It's called a Miktam of David. और ये जो भजन है वो भजन बहुत ही महत्वपूर्ण भजन माना जाता है। Or a golden psalm.
और जैसा मैंने कहा कि महत्वपूर्ण भजन, and it has a deep and it has deep and enduring value. और ये भजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कई मायनों में। It reflects a time when David was in a season of deep personal dependence on God. और ये वो भजन है जब दाऊद के बारे में दर्शाता है कि जब दाऊद बहुत ही गहरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर रहा। And it's interesting that these verses, 1,000 years later, it's quoted in the book of Acts. Twice it's quoted. और कई हजारों साल बाद जो है प्रेरितों के काम में इन्हीं पदों को दोबारा जो है दोहराया गया, बाइबल में अंकित है। And mainly to say, David is not talking about himself. He's talking about his descendant. He's talking about the Messiah who would come and who would die and whose body would और not see दाऊद decay. जो है वो अपने आप के विषय में नहीं बता रहा है उस भजन में, वो तो आने वाली पीढ़ी अपनी जो वंशावली है उस वंशावली के बारे में बता रहा है जो मसीहा के रूप में आने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। And Jesus fulfills these verses. और इन्हीं पदों के द्वारा यीशु जो है अपनी उन भविष्यवाणियों को पूर्ण करते हैं। The Bible doesn't say, but I'm imagining that Jesus picked up these verses and realized it refers to himself as a Messiah, and he began to meditate on it, and that became like a promise to him. और मैं कल्पना कीजिए या मैं कल्पना करता हूँ कि यीशु ने इन्हीं पदों को उठाया और इसी को प्रतिबिंबित करते हुए वास्तविक रूप में उसे परिणित करने की कोशिश की। And we're going to see today that his faith will open the door of resurrection when we hold on to the promises of God. और हम देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर के वचन को पकड़े रखेंगे, धरे रखेंगे, तो हम उस पुनरुत्थान के दरवाजे को खोलते हैं। What is the promise? और प्रतिज्ञा क्या है? The verse says, "My heart is glad, my tongue rejoices, and my body also will rest secure." और मेरा हृदय आनंदित है और मेरी आत्मा मग्न है और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। When you get a word from God, it thrills your heart. और आप जब परमेश्वर के वचन को पाते हैं तो आप परिपूर्ण हो जाते हैं। Today we're here for Resurrection Sunday. क्योंकि आज एक पुनरुत्थान का रविवार है। Why? Because we believe that Jesus died, he was buried, on the third day he rose और again. क्यों हम इस विश्वास करते हैं कि ये पुनरुत्थान का रविवार है? क्योंकि यीशु ने मुर्दों में से जी उठा। And that's why, so many people, Christians all over the world, they come to celebrate Easter because it's such an important thing. और सारे संसार भर में पुनरुत्थान की रविवार को मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जो कार्य किया है। How many of you know, how many of you are excited about the resurrection? कितने में से आप उत्साहित हैं कि पुनरुत्थान के विषय को लेकर? Amen. Our heart is glad that Jesus rose from the और dead. हमारा हृदय प्रफुल्लित है क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा। Imagine if we had everything, we had Palm Sunday, we had Good Friday and no Easter Sunday. और कल्पना करिए कि हमने पाम संडे मनाया और गुड फ्राइडे भी मनाया, अगर ईस्टर नहीं होता या पुनरुत्थान का ये दिन नहीं Maybe होता, we'll all be looking for Jesus' tomb to go and light a candle there. और हो सकता है कि उस कब्र के पास जाकर हम एक कैंडल जलाते, But his tomb is empty. लेकिन याद रखें कि वो Hallelujah. कब्र खाली है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. And so, I'm imagining Jesus getting this promise of God. और मैं कल्पना कर रहा हूँ कि ये प्रतिज्ञा यीशु ने पाली है And his heart becomes glad. और उनका हृदय आनंदित है। He's receiving a word from God and he knows God is speaking to him. It's about the Messiah. उन्होंने जो है उस वचन को अपने पिता से पाया और उन्होंने ये जान लिया कि आगे चलकर मैं मसीहा बनूंगा। Amen. But the next thing it says, and my tongue rejoices. और उसके बाद दूसरा है कि मेरा मन जो है आनंदित है। There's hardly 1 foot gap from your heart to your tongue. और ज्यादा दूरी नहीं है आपके हृदय और आपके जीभ के बीच की दूरी। And the difference between a saved person and an unsaved person is all the hearts are getting glad, but the saved person causes his tongue to speak. और एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति और एक उद्धार पाया हुआ ना व्यक्ति के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति उद्धार पाया होता है वो जो है अंगीकार करता है और घोषणा करता है। Amen. The Bible says if you believe in your heart and confess with your mouth, you're saved. अगर बाइबल बताती है कि आप अगर हृदय में अंगीकार करते हैं और अपने मुंह से अपनी जुबान से बोलते हैं
तो आप उद्धार पाएंगे। If you've never experienced that, today is the day. और अगर आपने पहले कभी ये अनुभूति नहीं की है तो आज ही वो दिन है अंगीकार करने To का। experience a resurrection in your heart, in your life, in your spirit, और आप अपनी आत्मा में, अपने हृदय में उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करेंगे। not only are you to get glad in your heart, और केवल आप उत्साहित ही नहीं होंगे, you got to rejoice with your tongue. और आप अपने मुंह से भी अंगीकार करेंगे और उसे धन्य कहेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Therefore my heart is glad and my tongue rejoices. और मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न हुई। And then he said, my body also will rest secure. और उसके बाद कहता है कि मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। You know, that's the pattern of faith. और यही विश्वास का एक पैटर्न है। You believe in your heart, हृदय से विश्वास करें, you confess with your mouth, अपने मुंह से अंगीकार and then करें it experiences, it manifests in your life. और अपने जीवन में उसे अनुभव करें। Hallelujah. हालेलुया। You know, I think of our father of faith, Abraham. और मैं विश्वास के पिता अब्राहम के बारे में सोचता हूँ। He also had a promise of God और उनके पास भी परमेश्वर की ओर से एक प्रतिज्ञा थी that he would become a father of many nations. और उन्हें जो है जातियों का पिता बनने के लिए परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा दिया था। But he was getting old, his body was as good as dead, the Bible says. और बाइबल बताती है कि अब्राहम बूढ़ा होता गया, ऐसा कि मरी हुई सी शरीर हो गई थी। But against all hope, in hope he believed. और सारे अपने विश्वास के विरुद्ध में उन्होंने विश्वास किया। The Bible says in Romans chapter 4 और रोमियो उसका 4 अध्याय में and verse 19, और 19वें पद में, he faced the fact that his body was as good as dead. और अब उन्होंने अपने शरीर को मरे हुए शरीर के समान पाया। Verse 20 says he didn't waver through unbelief regarding the promise of God. और बाइबल हमें बताती है 20वें पद में कि अविश्वास होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर उन्होंने संदेह नहीं किया। Amen. This resurrection Sunday, make it your decision. और आज इस पुनरुत्थान के रविवार में एक निर्णय आप लें। When God touches my heart, thrills my heart becomes glad. और जब परमेश्वर मेरे हृदय को छूता है, मैं आनंदित होता हूँ I'm going to speak it out. और मैं बोलूंगा। Hallelujah. हालेलुया। I like what one preacher said. If you can move your mouth, you can move mountains. और किसी प्रचारक ने कहा कि अगर आप अपने मुंह से बोल सकते हो तो पहाड़ों को भी हिला सकते हो। Amen. How many can move your mouth? आप कितने में से आप अपने मुंह को हिला सकते हैं? I'm not talking about the lunch afterwards. You'll be moving और on. मैं लंच के बारे में नहीं कह रहा हूँ, But I'm talking about speaking word. और मैं कह रहा हूँ कि घोषणा के वचन। Amen. आमीन। And so what did Abraham do? और अब्राहम ने क्या किया? He started rejoicing. अब्राहम ने जो है जो घोषणा की और आनंदित हुआ। Verse 20 of Romans 4 says, he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. और अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर उन्होंने संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। Amen. आमीन। What you say does not have to have any bearing with what you see. और जो है जो आप कहते हैं उससे जो आप देखते हैं उससे उसका सामंजस्य कुछ नहीं है। What you say should line up with what you believe. और आप जो कहते हैं और जो विश्वास करते हैं वो दोनों चीजें साथ में Amen. होनी चाहिए। Not just the facts, और केवल जो है फैक्ट्स के विषय में नहीं, but the truth. सच्चाई, And the truth is God's word. और सच्चाई परमेश्वर का वचन है। Amen. Verse 21 says, being fully persuaded that God had power to do what he has promised. और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने में भी समर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus lived that life of faith. और यीशु उस विश्वास के स्तर का जीवन जिया है। You know, I imagine him coming into Jerusalem. हाँ, कल्पना करें कि यरूशलेम की ओर वो प्रवेश करते हैं Everybody wanted to make him king, और सब चाहते थे कि यीशु राजा बने, but he knew this is not the will of God. और ये यीशु जानते थे कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है The कि will वो of राजा God बने। was to go through the cross. और परमेश्वर की यही इच्छा यीशु के लिए थी कि वो क्रूस पे चढ़ाया He जाए, is willing to do that. और वो तैयार थे उस कार्य को पूरा करने के लिए। Amen. आमीन। He's not sidetracked by the good things.
और भली बातों को देखकर उन्होंने अपना ध्यान जो है परमेश्वर से हटाया नहीं, He's not sidetracked by the bad things. और बुरी बातों से भी देखकर उन्होंने अपना ध्यान यीशु परमेश्वर से हटाया नहीं, He's focused on what God has for him. और उन्होंने अपना ध्यान जो है अपने पिता की ओर लगाया। Hallelujah. This is a challenge for Resurrection Sunday. और इस पुनरुत्थान के रविवार के दिन ये हमारे लिए एक चुनौती है। Don't get sidetracked by all the praise of man. और मनुष्य की जो है प्रशंसाओं से जो है आप भटक न जाएं। Don't get sidetracked by the difficulties, the troubles, the persecutions, the challenges that you go through. और जीवन की उन चुनौतियों को देखकर किसी भी रूप से आप विचलित ना हो, Be focused on what God has for you. और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान केंद्रित रखें, और परमेश्वर ने जो आपके लिए ठहराया है उसकी ओर ध्यान दें। Our text says, He did it because you will not abandon me to the realm of the dead. और तूने मुझे जो है मृतकों के, तूने मुझे जो है मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ा। Jesus experienced a breakthrough. और यीशु ने जो है उस बेदारी को उन्होंने देखा है। Hallelujah. हालेलुया। God didn't abandon him. और परमेश्वर ने अपने पुत्र को त्यागा नहीं। Our Resurrection Sunday, he rose again. और पुनरुत्थान के उस दिन को उन्होंने वो मृत्यु में से जय होकर पुनरुत्थित हो गए। The promise was God would not let his faithful one see decay. और परमेश्वर प्रतिज्ञा ये है कि वो अपने धर्मी जन, अपने भक्तों को जो है सड़ने नहीं देगा। Can you imagine all that Jesus went through on the cross? His body was torn. There were thorns in his head. There were wounds. There were nail marks in his hands and in his feet. There was a spear wound in his side. His body was so broken. Yet he did not face decay in that tomb. और कल्पना करें कि उसका शरीर लहूलुहान हो गया, उसके शरीर पे कांटों का ताज पहनाया गया, उनके पांव और हाथों में कील ठोके गए, फिर भी लहूलुहान होने के बाद भी उसके पिता ने उसे उसके शरीर को सड़ने नहीं दिया। His faith got him the breakthrough. और उसका विश्वास ने उन्हें बेदारी दी। Amen. Amen. And you know, it would have been wonderful if Jesus' body was just preserved in the tomb till today. कल्पना करें कि आज तक उनका शरीर जो है प्रिजर्व करके वैसे ही रखा होता। And we say, God, you fulfilled your messianic word that Jesus' body is still today fresh that it was 2000 years और ago. कल्पना करें कि कहते हैं कि हमने इस शरीर को हमने प्रिजर्व करके रखा है 2000 साल पहले से अब तक जो है। But God goes one step further. और परमेश्वर एक कदम आगे और बढ़ जाते हैं। Not only does he preserve him in the tomb, और केवल उस कब्र में उन्होंने बचाया ही नहीं उन्हें, but the power of the Holy Spirit comes in him to raise him from the dead. और पवित्र आत्मा की सामर्थ जो है उनमें प्रवाहित होती है, उन्हें मुर्दों में से जिलाती है। And today, the resurrection becomes for us, you and me, by our faith, we experience और resurrection. पुनरुत्थान आपके लिए और मेरे लिए है, वही पुनरुत्थान की सामर्थ आज भी हम महसूस कर सकते हैं। The Bible says बाइबल बताती है in Romans 8 and verse 11, और रोमियो उसका 8 अध्याय का 11वें पद, and if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. और यदि उसी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है तुम में बसा हुआ है, जो कि जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारे मरणहार देहों को भी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Just take a moment to just praise God. और एक कुछ क्षण लें और परमेश्वर का And धन्यवाद just करें। close your eyes and just say, अपनी आंखों को बंद Lord, करें। thank you. Thank you for resurrection. धन्यवाद देते हैं पुनरुत्थान के लिए। The same spirit, वही आत्मा, same spirit that raised Jesus from the dead, वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, same spirit is living in me. और वही आत्मा मुझ में जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Hallelujah. Amen. 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 That resurrection power is ours. पुनरुत्थान की सामर्थ हमारी है। And today we need to walk in that confidence. हमें जो है उस दृढ़ विश्वास में चलना होगा। Amen.
You know, God has not given us a different Holy Spirit. परमेश्वर अलग रीति से पवित्र आत्मा हमें देने वाला नहीं है, The same Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा है। Maybe some of you here today, you're going through some death experience. हो सकता है कईयों में से आप अपने जीवन में कुछ मरे हुए परिस्थितियां जैसी स्थितियां आपके जीवन में हैं। Maybe in your health. हो सकता है स्वास्थ्य को लेकर, Maybe in, fertility. हो सकता है कि जो है आशीष को विषय Maybe को in your लेकर, career, और करियर को लेकर हो, your finances. आर्थिक स्थितियां हो, Maybe in your marriage or other relationship. और वैवाहिक जीवन या कोई और संबंध क्यों ना हो। Today's Resurrection Sunday. आज पुनरुत्थान का रविवार है। The same Spirit वही आत्मा raised Jesus from the dead जो आत्मा यीशु को मुर्दों में से जिलाया है, is living in you. वो आत्मा आप में जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। Are you confident of it? क्या आप इस बात को निश्चयता से जानते हैं? Amen. It's your faith that's going to give you, open the door to resurrection. और ये आपका ही विश्वास है जो उस दरवाजे को खोलेगा पुनरुत्थान के सामर्थ्य को प्रभावित होने I के लिए। can't tell you when it's going to happen. और मैं नहीं बता सकता कब होने वाला है। The Bible tells us of some people, they kept living in faith. They died in faith. They didn't even receive what was promised, but they kept on in faith. और बाइबल हमें बताती है कि जिन्होंने बहुत सारे ऐसे विश्वास के योद्धा हैं जो विश्वास से जिए, मर भी गए लेकिन उन्होंने विश्वास पे अटल रहे। Amen. I want us to stand this afternoon. मैं चाहूंगा कि हम सब खड़े हो जाएंगे। Just commit ourselves. आइए आप अपने आप को समर्पित Be करें। like Jesus. Entrust yourself to the क्या Father आप यीशु की तरह अपने पिता पर विश्वास करेंगे and determine, और दृढ़ विश्वास के साथ, Father, I'm going to focus on your promises. ओ प्रभु मैं तेरे प्रतिज्ञाओं पर ही मनन करूंगा, And no matter what I'm going through, चाहे कोई भी चुनौती क्यों ना हो। you are the God of the resurrection. तू प्रभु पुनरुत्थान पुनरुत्थित परमेश्वर है। I want to ask you today, मैं आज पूछना चाहूंगा what आपसे, the Lord is speaking to you. क्या आप परमेश्वर क्या आपसे बातें कर रहा Are है? you willing to step out in faith? क्या आप विश्वास का एक कदम बढ़ाएंगे उसमें? Maybe He's asking you to go and apologize to someone. हो सकता है उन्होंने कहा हो कि आप किसी से जाकर क्षमा माफी मांगे, Maybe a simple thing like stop worrying about something and put it into the Lord's hand. और ये छोटी बातें हो सकती हैं। ये इन चीजों को जो है, इन विषयों को लेकर चिंता ना करें, लेकिन परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। Maybe it's today say, Lord, I'm sorry, I've been wavering through unbelief. Sometimes I'm believing, sometimes I'm not believing. When it becomes so hard, I think, God, you've changed your mind. Maybe you just repent of that today. हो सकता है कि आप कई बार विश्वास में मजबूत हैं, कई बार विश्वास में आप कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि आज परमेश्वर आपसे नए सिरे से बातें कर रहा हो। Are you willing to be like Jesus? क्या आप यीशु की तरह होना In चाहेंगे? the Garden of Gethsemane, उस गेत्सेमनी बाग में, it's so hard. He's sweating drops of blood. और उस कितना मुश्किल समय था जो है, उनके आंसू लहू में बदल गए। He's saying, nevertheless, not my will, but your will be done. परंतु यीशु ने कहा कि पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने He's पाए। saying, God, I know that you will preserve me. और यीशु ने अपने पिता से कहा, पिता मैं जानता हूँ कि तू मुझे बचाएगा, I know that you'll never leave me or और forsake me. मैं जानता हूँ कि तू मुझे ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, I know that at the end of it, there is resurrection. और मैं जानता हूँ कि अंततः पुनरुत्थान है, And nothing can separate me from और your कोई भी बात जो है मुझे पिता से अलग नहीं कर सकती। Father, we receive your power today. ओ प्रभु उस सामर्थ्य को हम पाते हैं आज। I want to pray, Lord, for anyone here who doesn't know the Lord Jesus personally. You don't have assurance of salvation. You're not sure what will happen to you if you die today. You don't know your eternal destiny. और प्रभु हमारे बीच में अगर कोई भाई या बहन है जो तुझे व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं हैं, या आप ये कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा अंत जीवन का क्या होगा, If there's anyone like that, you want to pray this prayer with me. अगर आप में से कोई है जो प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे साथ, I want you to just lift up your hand. मैं चाहूंगा कि आप अपने हाथ को उठाएं। Lift it up. If you're not saved, if अगर you're आपने उद्धार पाई नहीं है, पहली बार आप उद्धार पाना चाहते हैं, तो अपने हाथ को उठाएं। if you're not yet a believer, अगर आप अब तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हैं, put your hand up and then put it down. Just put it up and put it down. केवल आप हाथ खड़े करके फिर आप नीचे कर लें।
I want you to pray this prayer with me. और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। Father, पिता, I come to you. मैं तेरे पास आता हूँ, I receive your promise मैं तेरी प्रतिज्ञा को प्राप्त करता हूँ of eternal life. और उस अनंत जीवन की प्रतिज्ञा को I पाता हूँ। open my heart. मैं अपने हृदय को तुझे Keep, खोलता हूँ। keep repeating this after me. मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। I open my heart मैं अपने हृदय को खोलता हूँ। and I ask you, Jesus, मैं चाहता हूँ यीशु, come into my life. आप मेरे जीवन में आइए, Be my Lord. आप मेरे प्रभु बनिए, Be my Savior. मेरा उद्धारकर्ता बनिए, Forgive me of all my sins. मेरे पापों को क्षमा कीजिए। I receive that eternal life. अब मैं उस अनंत जीवन को पाता हूँ। I thank you मैं धन्यवाद देता हूँ that you will not leave me कि आप मुझे त्यागेंगे and I'll नहीं be with you forever. और मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। I receive it now. मैं ये पाता हूँ इसे In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. 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 Amen.